Hi student, here I am with the second part of the chapter Indigo. Till now we read how Gandhiji recounted an event in 1942 and he narrated this to the writer Louis Fisher, that how he felt that the Britishers should leave India. In a meeting that was of Indian National Congress Party held in December 1916, Gandhiji met Rajkumar Shukla, who came from Champaran, and he wanted Gandhiji to accompany him to Champaran to solve the problems of the sharecropper. But as Gandhiji was busy with some of the engagements, he promised him to come with him when he would arrive in Calcutta. After many months, when Gandhiji arrived in Calcutta, he found Shukla was waiting for him. After that, they took a train for the city of Patna in Bihar. And Shukla House, who later became the president of the Congress Party and of India. As Rajendra Prasad was not at home, so the servants didn't know about Gandhiji. He left both of them to sit on the grounds. Even they did not let Gandhiji to take the water out of the well, because it may actually they were taking Gandhiji as another untouchable who may pollute the water of the well. Okay, now Gandhiji decided that they should at first go to Muzaffarpur, which was lying in the route of Champaran. Why he wanted to go to Muzaffarpur? Because he wanted to collect some of the information by himself. So he told his friend whom he met at Tagore Shantiniketan School, Professor J.B. Kriplani, and when they reached um, at midnight, he was received by J.B. Kriplani with a large body of students, and there he stayed at the house of Professor Malkani. And in those days, it was really very extraordinary thing for the government employees to give shelter to such people who advocate the home rule. And everybody came to know about Gandhiji arrival, that Gandhiji has come. So many people start coming to Muzaffarpur on foot and the other conveyance that were available to meet Gandhiji. Gandhiji called lawyers, asked about the case, and in return the lawyers told about the case and the fee they charged from the sharecropper. At this point, Gandhiji really scolded the lawyer big fee. Actually, what was the thought of Gandhiji? That it was useless to go to law courts when the peasants are so crushed and afraid. So he wanted the peasants to be free from fear. Okay, now come to the Champaran. Most of the arable land, that was the fertile land, it was divided into large estates owned by the Englishmen, and who were working? Indian tenants were working. Now what was the arrangement there? Basically it was a landlord system. It was the arrangement that the owners of the land force the tenants to plant 15% of their land, the indigo harvest, and in return as a rent they have to pay the all the harvest to the owners, and it was a long term contract. Later on it was came to in the news that Germany had developed synthetic indigo, so natural indigo became useless. What did they do? The owners wanted to release the sharecroppers from the arrangement, that was a long term contract to plant 15%. So what did they say? That they would release them from that long term contract if they pay some money, and many of the people paid the money, but many denied. And later on everybody came to know that such kind of the problem is there. Germany synthetic is developed, so everybody wanted to get their money back. At this point Gandhiji was in Champaran. That was in the first part that we have read. Now it is the page number 49 and I am with the second part.
He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. I'm telling you again and again, remember all the details. The first visit, he went to secretary of the British Landlord Association. Remember this. The secretary told him, this is also should be remembered, that they could give no information to an outsider. Now, who is outsider here? Gandhi ji is not an outsider because he was in his own country. The secretary was the outsider, but he threatened Gandhi ji that he was not going to tell anything to any outsider, कि वो किसी भी बाहर वाले को कोई भी information नहीं देगा. Now the next meeting, Gandhi ji called on the British official commissioner of the Tirhut division, underline this and remember this, in which the Champaran district lay. द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुलेमी, कि गांधी जी को, कि कमिश्नर ने धमकाना शुरू किया गांधी जी को, एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुट, और उन्हें कहा कि आप, अच्छा होगा आपके लिए कि आप तिरहुट को छोड़ दें. गांधी जी डिडंट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा तिरहुट डिवीजन को. इंस्टेड ही वेंट टू मोतिहारी, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ हो लिए. और रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का बहुत बड़ा वेलकम हुआ. वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड वेलकम्ड गांधी. ही वेंट टू अ हाउस, और वहाँ से वो एक घर जिसे एज अ हेड क्वार्टर उन्होंने यूज़ किया और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. Then a report came कि a peasant had been maltreated, means badly treated in a nearby village. एक खबर आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ बुरा जो है बिहेव हुआ है. गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि चलो नेक्स्ट मॉर्निंग जाते हैं और उससे मिल के आते हैं. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब पुलिस सुप्रिटेंडेंट के मैसेंजर ओवरटुक हिम, और उन्हें ऑर्डर करते हैं कि आप वापस टाउन में जाइए. गांधी जी मान जाते हैं. मैसेंजर गांधी जी को उनके घर तक लाते हैं और उन्हें ऑफिशियल नोटिस देते हैं टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि अभी चंपारण को छोड़ दीजिए. दैट वाज अ ऑर्डर, लीगल ऑर्डर. गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी साइन कर देते हैं कि मुझे नोटिस मिल गया है, लेकिन उस पर क्या लिखते हैं, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे. इन कॉन्सिक्वेंस, तो परिणाम क्या हुआ, गांधी जी रिसीव्ड अ समन, गांधी जी को समन आ गए, कोर्ट ऑर्डर आ गए, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि आपने ऑर्डर्स नहीं माने तो आपको अभी कोर्ट में जाना पड़ेगा. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, की अपने दोस्तों के साथ आइए. हु आर इन्फ्लुएंशियल वंस, दोज हु हैव नेम फेम एंड हैव द इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं और वाइसराय को पूरी रिपोर्ट सेंड करते हैं. और सुबह होते होते मोतीहारी was black with the head of the peasants. It means so many people, the peasants were there that only the heads could be seen. They didn't know Gandhi record in South Africa. वो गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने किस टाइप का फ़ाइट किया है. उन्होंने तो सिर्फ मियरली मीन्स ओनली इतना सुना था कि महात्मा वो उनको हेल्प करना चाहते हैं, हु देम इन ट्रबल विद द अथॉरिटी, सॉरी, कि महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं उनको अथॉरिटीज़ के साथ कोई ट्रबल हो गया है. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो कि उनका अपना स्पॉन्टेनियस था, किसी ने बोला नहीं था. दे वर देयर एट देयर ओन, अपनी इच्छा से आए थे, थाउजेंड्स के अंदर, कोर्ट हाउस के बाहर. ये एक शुरुआत थी उस डर से आज़ादी की जो गांधी जी चाहते थे, अपने किसानों को डर से आज़ाद करना. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश. इफ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, दैट वाज इन द मोतीहारी, द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस. अब जो ऑफिशियल्स हैं, द पुलिस ऑफिसर्स हैं एंड द अदर ऑफिशियल्स, दे फेल्ट पावरलेस टू कंट्रोल दैट वास्ट मल्टीट्यूड, की क्राउड को कंट्रोल करने में उनको दिक्कत आ रही है बिना गांधी जी की हेल्प की.
He helped them and Gandhi ji was so cooperative that he helped them regulate the crowd. उन्होंने उनकी हेल्प की क्राउड को कंट्रोल करने में. He was polite, friendly. He was giving them concrete proof. उन्होंने उनको प्रूफ दिया that their might, कि उनकी ताकत, जो अंग्रेज़ों की ताकत है, hitherto dreaded and unquestioned, कि जो उनकी आज तक अनक्वेश्चनड माइट थी, पावर थी, ड्रेडेड थी, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, यानी कि जो आज तक वो अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे कि कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता, इंडियंस उन्हें चैलेंज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट कन्फ्यूज़ हो गई. जो प्रोसिक्यूटर लॉयर था उन्होंने इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए. अपरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, और साफ दिखाई दे रहा था कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं कि क्या करें. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और कोर्ट के अंदर गांधी जी ने डिले करने के लिए प्रोटेस्ट किया. उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी कि मैं दोषी हूँ. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट को बताते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि उनके अंदर ड्यूटीज़ का कन्फ्लिक्ट था. एक तरफ तो वो बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे कि वो कानून को तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो जो एक नेशनल सर्विस है, राष्ट्र को की जो हमारी सेवा होती है, या एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे सुनना चाहते थे. यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते थे. यानी कि वो कानून भी नहीं तोड़ना चाहते थे, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी काम करना चाहते थे. For which he had come, he disregarded the order to leave. इसी वजह से उन्होंने चंपारण छोड़कर जाने के ऑर्डर को नहीं माना. Not for want of respect, want होता है not having, यानी कमी जिसको कहेंगे. ऐसा नहीं कि उसके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है लॉफुल अथॉरिटीज़ के लिए, बल्कि वो ओबे कर रहा था हायर लॉ ऑफ आर बीइंग. वो क्या है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़. उसने उस आवाज़ को सुना. तो जो भी आप मुझे सज़ा देना चाहते हो, पेनल्टी देना चाहते हो, ड्यू, वो आप मुझे दे सकते हैं. मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस मीन्स गिव, सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट, कि 2 घंटे के रिसेस के बाद वो पनिशमेंट सुनाएंगे. गांधी जी को कहा कि 2 घंटे की बेल के आपको फर्निश बेल यानी मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. गांधी जी मना कर दिया और जज ने बिना बेल लिए उन्हें रिलीज़ कर दिया. और व्हेन द कोर्ट रीस्टार्टेड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. और क्या कहा कोर्ट जज ने कि वो अभी काफ़ी दिनों तक जो है इसका जजमेंट नहीं हो सकता. और उन्होंने गांधी जी को कहा कि यू कैन रिमेन एट लिबर्टी, तब तक आप आज़ाद रह सकते हैं. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना महजुरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. बहुत सारे लॉयर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे, बहुत सारे लीडर्स पहुँच चुके थे. दे कन्फर्ड विद गांधी, गांधी जी के साथ उन्होंने डिस्कशन किया. व्हाट वुड दे डू, कि वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को सज़ा हो जाती है जेल की. Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him, कि वो तो गांधी जी की हेल्प करने आए हैं, उनकी एडवाइस करने आए हैं. अगर वो जेल चले जाएंगे तो वो वहाँ क्या करेंगे, तो वो भी अपने घर चले जाएंगे. What about the injustice to sharecropper, और इस पॉइंट पर गांधी जी ने ये डिमांड किया कि जो शेयर क्रॉपर के साथ अन्याय होगा उसका क्या. The lawyers withdrew to consult, वो भी सोचने लगे हैं. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन. राजेंद्र प्रसाद ने उनका कंसल्टेशन, जो भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में बताया कि दे थॉट अमंगस देमसेल्व्स, कि जो लॉयर्स थे उन्होंने ये सोचा कि उनमें से गांधी जी बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, और वो तैयार हैं किसानों के लिए जेल जाने के लिए. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district, but also those who claim to have served these peasants, और वो खुद क्या हैं, आस पास के इलाकों से बिलोंग करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो घर चले जाएंगे. ये तो एक शेमलेस एक्शन होगा, डिसर्शन होगा. यानी कि अगर वो चले जाते हैं तो एक शेमफुल जो है एग्जिट होगा.
They got to Gandhi and told fall him into jail. उस डिस्कशन के बाद वो गांधी जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि वो तैयार हैं उनके साथ जेल जाने के लिए. Now the battle of Champaran is won. This is the question. How can you say the battle of Champaran is won when the lawyers got ready to accompany him into jail? देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर. और फिर इस डिसीजन पर गांधी जी ने एक पेपर लिया, ग्रुप को पेयर्स के अंदर डिवाइड किया, पुट डाउन द ऑर्डर लिखा कि कैसे हर पेयर जो है अपना कोर्ट अरेस्ट देगा. सेवरल डेज लेटर गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आता है मजिस्ट्रेट की तरफ से जो ये इन्फॉर्म करता है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि गांधी जी के विरुद्ध जो केस था उसे ड्रॉप कर दिया गया है. सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड. अनदर क्वेश्चन कि व्हेन द सिविल डिसओबीडियंस triumphed, when the case against Gandhi ji was dropped, and it was first time in modern India, यानी कि civil disobedience की जीत हुई. Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी जी ने और lawyers ने उसके बाद बड़े ज़ोरों शोरों से इंक्वायरी शुरू कर दी जो फार्मर्स की कंप्लेंट्स थी उसको लेकर. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 किसानों की जो कंप्लेंट्स थी उन्हें लिखा गया. नोट्स बनाए गए, एविडेंसेस के साथ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया गया. पूरा का पूरा एरिया जो था इट वाज थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड. पूरा एरिया जो है थ्रॉब यानी कि बड़ी हलचल मची हुई थी. कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कहीं प्रोटेस्ट चल रहे थे. इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जून के अंदर गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि अगर वो वापस नहीं आते तो किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को कैरी करना है. गांधी जी हैड 4 protracted interviews, continuous interviews with the lieutenant governor. 4 जो हैं उनके इंटरव्यूज़ हुए. एज अ रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या हुआ उसका, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के अंदर. अब इस कमीशन के अंदर लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और गांधी जी सिर्फ अकेले थे पीजेंट्स की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted months and then again for several shorter visits. गांधी जी चंपारण के अंदर कॉन्टीन्यूस जो है 7 मंथ्स तक रहे और भी बहुत सारी उन्होंने छोटी विजिट्स वहाँ की. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ द अनलेटर्ड मीन्स illiterate peasant in the expectation that it would last for a few days. तो एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पर जो गांधी जी ने विज़िट किया था ये सोच के कि चलो कुछ दिन वहाँ लग जाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 1 साल उनका ज़िंदगी का चंपारण में बिताया उन्होंने. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, अब ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी ऑफ कमीशन बिठाया था, असेंबल्ड अ माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. बहुत प्लांटर्स जो बड़े बड़े ऑनर्स थे उनके अगेंस्ट जो है, जो ऑलरेडी गांधी जी ने होमवर्क करके रखा था, वो सारे एविडेंस जो कि बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर थे वो उनके सामने रखे गए. और जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने एग्री किया इन प्रिंसिपल कि उन्हें पीजेंट्स को मनी रिफ़ंड करना पड़ेगा. केस क्या था कि इंडिगो शेयर क्रॉपर से रिलीज़ करने के लिए उन्होंने शेयर क्रॉपर से जो रिलीज़ अमाउंट लिया था वो उन्हें रिफ़ंड करने के लिए बोला गया. अब बात क्या थी, हाउ मच मस्ट वी पे, कि कितना पे करना पड़ेगा. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से डिसीटफुली, धोखे से, एग्जॉर्टेड मीन्स ज़बरदस्ती जो है शेयर क्रॉपर से लिया था. लेकिन गांधी जी ने 50% मांगा.
देयर ही सीम्ड एडामेंट, क्या लग रहा था, गांधी जी 50% से तो कम मानेंगे ही नहीं. Right Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at a close range, जिन्होंने इसको बहुत closely देखा था. Thinking probably that he would not give way, ऐसा लग रहा था कि गांधी जी नहीं मानेंगे. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स जो हैं यानी कि गांधी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि चलो 25% दे दो. और टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी जो हैं इस बात के लिए मान गए. और इस तरीके से जो डेडलॉक था उनके अंदर, जो मतलब जो जिसकी वजह से केस रुका हुआ था, इट वॉज ब्रोकन देयर. इट मीन्स द सेटलमेंट वॉज देयर. The settlement was adopted unanimously, means in one voice, सबने माना. गांधी जी explained, गांधी जी ने रिटर्न में क्या कहा, the amount of the refund was less important, कि amount जो है वो important नहीं है. Then the fact the settlement was adopted, Gandhi ji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टेज, कि पैसा मैटर नहीं करता, ना सिर्फ उनको पैसे देने पड़ा बल्कि अपना सम्मान भी देना पड़ा. देयरफॉर एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक पीजेंट्स की बात है, प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. जो प्लांटर्स थे अपने आप को भगवान से ऊंचा मानने लगे थे. अब किसानों को समझ आ गई थी कि उनके राइट्स भी हैं और उन्हें डिफेंड करने के लिए भी हैं. और इस तरीके से भारतीय किसान ने करेज सीखा, साहस सीखा. Event justified Gandhiji position. Within a few years, the British planters abandoned their estate, और कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स ने उन एस्टेट को छोड़ दिया, जो वापस पीजेंट्स के पास वो ज़मीन चली गई और इंडिया के अंदर शेयर क्रॉपिंग अपीयर हो गए. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेकेंड पार्ट. Thank you. Have a nice day. See you soon with the third part of Indigo. Bye bye.